Hello students, this is Amit Tiwari, your English teacher. Students, we have been studying the fourth lesson of Snapshot book, Landscape of the Soul. Until now, we have seen that in China, during 8th century, the Tang Emperor Zhuangzong commissioned a painter Wu Daozi to decorate a wall in the palace. And once the painter painted, he told the emperor that he would take him inside the painting. The painter entered the cave and the entrance closed behind him. And as soon as the painter clapped his hand, the painting on the wall was gone, and so was the painter. Now let us see what happens next in the story. Such stories played an important part in Chinese classical education. The books of Confucius and Zhuangzi are full of them. They help the master to guide his disciple in the right direction. Beyond the anecdote, they are deeply revealing of the spirit in which art was considered. Now, such stories, like the story of Wu Daozi, played an important part in Chinese classical education. And the books of Confucius and Zhuangzi are full of these kind of stories. And these stories helped the masters to guide their disciples in the right way, in the right direction. Here, anecdote means a short, amusing, or interesting story about a real incident or a person. So, these stories deeply reveals about the spirit in which art was considered. Art and its spirit were considered in a very positive way, particularly in Chinese culture. Contrast this story or another famous one about a painter who would not draw the eyes of a dragon he had painted, for fear it would fly out of the painting, with an old story from my native Flanders that I find most representative of Western paintings. अब यहाँ पे जो राइटर है वो एक कंट्रास्टिंग स्टोरी के बारे में बता रहा है, एक और फेमस पेंटर के बारे में बता रहा है जो कि ड्रैगन्स की पेंटिंग करता है। और ड्रैगन्स की पेंटिंग करते समय वो ड्रैगन की आंखों को नहीं बनाता, उसे डर रहता है कि ड्रैगन जो है कहीं उड़ के बाहर ना निकल जाए पेंटिंग से, और इसी डर से वो पेंटिंग की आंखों को ड्रॉ नहीं करता है। और इस तरीके की जो पेंटिंग्स हैं वो वेस्टर्न फिगरेटिव स्टाइल ऑफ पेंटिंग को बहुत ज़्यादा शो करती हैं। अब ये जो स्टोरी है पहली वाली स्टोरी से बिल्कुल कंट्रास्ट है। अब इस स्टोरी में हमें पेंटिंग के एक अलग ही स्टाइल के बारे में पता चल रहा है, और वो स्टाइल जो है काफ़ी कुछ रियलिज्म से मिलता जुलता है। यानी कि जो वेस्टर्न कंट्रीज़ में या वेस्टर्न कल्चर में जो पेंटर्स हैं वो अपनी पेंटिंग्स को कुछ इस तरीके से बनाते हैं कि उनकी पेंटिंग्स बिल्कुल रियल दिखाई देती है, बिल्कुल वास्तविक दिखाई देती है। तो इस स्टोरी से ये पता चल रहा है कि जो पेंटर है वो ड्रैगन की पेंटिंग करता है और उसकी आंखों को इस कदर रियलिस्टिक वे में पेंट करता है कि उसे लगता है कि कहीं ये ड्रैगन सच में पेंटिंग से बाहर निकल ना जाए। तो वेस्टर्न पेंटिंग्स आर वेरी क्लोज टू रियलिज्म। In 15th century, Antwerp, a master blacksmith called Quentin Metses fell in love with a painter's daughter. 15th century एंटवर्प में एक मास्टर ब्लैक स्मिथ जिसको कि क्विंटन मेट्सिस
कहा जाता है, क्विंटन मैट्सिस के नाम से फेमस था, वो एक पेंटर की लड़की से प्यार कर बैठता है. द फादर वुड नॉट एक्सेप्ट अ सन इन लॉ इन सच अ प्रोफेशन. और लड़की के जो फादर हैं, मीन्स जो पेंटर है, वो अपने सन इन लॉ को ऐसे प्रोफेशन में बिल्कुल भी एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है. सो क्विंटन स्नीक्ड इनटू द painter's studio and painted a fly on his latest panel with such delicate realism that the master tried to sweat it away before he realized that what had happened. अब जो क्विंटन मैट्सिस है वो पेंटर के स्टूडियो में चुपके से घुस आता है और उसके कैनवास पे, उसके लेटेस्ट कैनवास पे एक बहुत ही डेलिकेट और रियलिस्टिक पेंटिंग करता है. और किसकी पेंटिंग करता है? एक फ्लाई की पेंटिंग करता है, एक मक्खी की पेंटिंग करता है. और वो मक्खी की पेंटिंग इस कदर रियल दिखाई देती है कि जब पेंटर अपने स्टूडियो में आता है और अपने कैनवास पे उस मक्खी को देखता है तो बिल्कुल उसे रियल समझ लेता है और उसे भगाने के लिए उसको मारता है. लेकिन तभी उसे रियलाइज़ होता है कि नहीं, ये तो एक पेंटिंग है. तो कहने का मतलब ये है कि जो वेस्टर्न पेंटिंग स्टाइल है वो बहुत ही ज़्यादा रियलिस्टिक पेंटिंग स्टाइल है. पेंटिंग में जिस भी चीज़ को ड्रॉ किया जाता है वो बिल्कुल रियल दिखाई देता है. नाउ ही मैरिड हिज बिलव्ड एंड Quinton was immediately admitted as an apprentice into his studio. Here apprentice means trainee. तो क्विंटन के इस पेंटिंग से पेंटर बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होता है और उसे अपने स्टूडियो में एज अ अप्रेंटिस, एज अ ट्रेनी रख लेता है. ही मैरिड इज बिलव्ड एंड वेंट ऑन टू बिकम वन ऑफ द मोस्ट फेमस पेंटर ऑफ हिज एज. और जो क्विंटन मैट्सिस है वो पेंटर की लड़की से शादी कर लेता है और आगे चल के बहुत ही फेमस पेंटर बनता है. These two stories illustrated what each form of art is trying to achieve: a perfect illusionistic likeness in Europe, the essence of inner life and spirit in Asia. तो ये जो दोनों स्टोरीज़ हैं, जैसा कि मैंने पहले वुडाउजी की स्टोरीज़ के बारे में बताया और अभी क्विंटन मैट्सिस की स्टोरी के बारे में बताया, ये दोनों ही बिल्कुल कंट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक शो करती हैं पेंटिंग स्टाइल की. वेस्टर्न पेंटिंग में फिगरेटिव पेंटिंग बनाते हैं, बहुत ही रियलिस्टिक पेंटिंग्स बनाते हैं. और जो चाइनीज़ आर्ट फॉर्म है उसमें एक इल्यूजनिस्टिक लाइकनेस की बजाय जो लाइफ की इनर स्पिरिट है उसको शो करने का प्रयास किया जाता है. अब लाइफ की इनर स्पिरिट का मतलब क्या? वो ये कि आप जिस चीज़ को जिस तरीके से देखना चाहते हैं वो चीज़ बिल्कुल आपको वैसे ही दिखाई देती है. यानी कि आपका देखने का पर्सपेक्टिव क्या है, आपका एटीट्यूड क्या है टुवर्ड्स लाइफ. और यूरोपियन जो आर्ट फॉर्म है वो बिल्कुल इल्यूजनिस्टिक लाइकनेस क्रिएट करता है. मीन्स अगर एक स्नेक को ड्रॉ किया गया है तो ऐसा इल्यूजन होगा कि वाकई वो स्नेक है जो कि बिल्कुल रियल है. In the Chinese story, the emperor commissions a painting and appreciates its outer appearance, but the artist reveals him the true meaning of his work. The emperor may rule over the territory he has conquered, but only the artist know the way within. Let me show the way. The Tao, a word that means both the path or the method and the mysterious work of the universe. The painting is gone, but the artist has reached his goal beyond any material appearance.